Assalamu alaikum students, welcome to the lecture number 27 for the subject of operating systems. So here are few objectives of this lecture. We will have a recap about the deadlock handling methods. Then we will discuss the deadlock detection and deadlock recovery. Now what are the different methods for handling deadlocks? In the previous lectures we discussed that there are basically three ways to handle deadlocks. The first solution is to prevent deadlock. The second solution is to avoid deadlock situation, and the third and the last way to handle deadlocks is deadlock detection and recovery. Now what was our focus in deadlock prevention? Deadlock prevention attempted in a way that the four necessary conditions for the deadlock doesn't hold. It means कि हमारे पास जो चार conditions थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीम्पशन, उसके बाद सर्कुलर वेट एंड होल्ड एंड वेट, ये चार कंडीशंस हमने डिस्कस की थी कि जब भी डेडलॉक अकर करेगा इन चारों कंडीशंस का होल्ड करना ज़रूरी है. अगर इनमें से एक भी कंडीशन होल्ड नहीं करती तो डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा. सो पहला हमारा जो टास्क था वो ये इंश्योर करना था कि ये चारों कंडीशन में से कोई एक ना एक कंडीशन जो है वो होल्ड ना करे. सो डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड्स में हमने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डिस्कस किए. हर प्रोटोकॉल का काम क्या था कि वो किसी एक कंडीशन को टारगेट करता था. वी डिवाइज्ड प्रोटोकॉल्स टू इंश्योर दैट देयर इज़ नो सर्कुलर वेट. वी डिस्कस्ड different protocols for handling no preemption. We also discussed different protocols for bypassing the hold and wait condition. So इन methods को use करके हम deadlock को prevent कर सकते थे. Then we discussed the deadlock avoidance algorithm. लेकिन deadlock avoidance algorithm में हमने discuss किया था कि ये algorithms circular wait condition को hold नहीं करने देते. वैसे तो डेडलॉक की चार कंडीशंस हैं, बट द डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक्स और डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम्स एम एट द सर्कुलर वेट कंडीशन. दे डोंट अलाउ द सर्कुलर वेट कंडीशन टू होल्ड. यानी इनका फोकस बाकी तीन कंडीशंस पर नहीं है. इसके लिए हमने दो एल्गोरिदम्स डिस्कस किए. द फर्स्ट वन वाज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम एंड द सेकंड वन वाज द बैंकर्स एल्गोरिदम. इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम वी डिस्कस्ड दैट we have three types of edges. One is the request edge, other is the assignment edge, and the third one is the claim edge. So in resource allocation graph, a claim edge is just like a request edge, but it describes the future situation or future demand of a process. So whenever a process actually requests for a resource, the claim edge is converted into the request edge, and when resource is granted, the request edge is converted into the assignment edge. So we discussed that if resource allocation graph algorithm results in a circular way, that we can say that we have a possibility of deadlock or a deadlock can occur, or in other words we are not in a safe sequence. But the limitation of resource allocation graph algorithm was that it was only applicable on रिसोर्सेज हैविंग सिंगल इंस्टेंसेस. यानी हमारे पास सिंगल प्रिंटर हो, सिंगल स्कैनर हो, सिंगल डिस्क ड्राइव हो, सिंगल टेप ड्राइव हो. इन सिचुएशंस के लिए हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते थे. बट इफ़ वी हैव मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज, दैन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम वाज नॉट यूजफुल. फॉर दिस वी एम्प्लॉयड द बैंकर्स एल्गोरिदम. नाउ इन बैंकर्स एल्गोरिदम वी डिस्कस दैट वी हैव फोर मैट्रिसेस. First one is a vector that is available matrix. The second one is a maximum need matrix. Third one is allocation matrix, and fourth one is we have total number of resources. तो बैंकर एल्गोरिथम में भी हमने बेसिकली ये डिमांड किया कि हर प्रोसेस अपनी जितनी भी नीड्स हैं उन सब को प्रायरली डिफाइन करे. उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल रिसोर्सेज में से कुछ रिसोर्सेज उनको एलोकेट करेगा, जो हमने एलोकेशन मैट्रिक्स में शो किए. उसके बाद हमने अवेलेबल रिसोर्सेज कैलकुलेट किए और फिर प्रोसेस की जो नीड्स थी वो फाइंड आउट की. फिर हर नीड पर हमने ये देखने की कोशिश की कि क्या हम उस नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं या नहीं. सो इफ़ द नीड वाज लेस दैन द अवेलेबल रिसोर्सेज
we can simply allocate the resources to the process so that it can complete its execution. लेकिन अब हमारे पास जो मेथड है वो डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी है, यानी हमने ना तो डेडलॉक को प्रिवेंट किया ना ही हमने डेडलॉक को अवॉइड किया, हमने सिंपली डेडलॉक को अकर करने दिया. नाउ व्हेन ए डेडलॉक अकर्स वी हैव टू डिटेक्ट द डेडलॉक and recover our system from the deadlock. Now what is deadlock detection? Deadlock detection is a technique that allows a system to enter the deadlock state. It means that we have no preventive or avoidance techniques. After entering the deadlock state, we will keep checking the system to find out if a deadlock has occurred or not. For this, a detection algorithm is used. So a detection algorithm detects the presence or absence of deadlock. So detection algorithm से हमने basically find out किया कि deadlock occur कर रहा है या नहीं. And if deadlock occurs, we can simply go for a recovery scheme to recover from the deadlock situation. क्योंकि अगर हम एक सिस्टम को डेडलॉक सिचुएशन में लीव कर देंगे तो वो हार्टिंग स्टेट में चला जाएगा. तो इसलिए हम डिटेक्शन एल्गोरिथम से सबसे पहले ये डिटेक्ट करेंगे कि डेडलॉक अकर किया या नहीं, और उसके बाद हम अगर डेडलॉक अकर करता है तो रिकवरी स्कीम की तरफ मूव करेंगे. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट डिटेक्शन एल्गोरिथम्स? वी हैव टू टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स हियर. द फर्स्ट वन इज़ द वेट ग्राफ एल्गोरिथम और वेट ग्राफ टेक्निक, एंड द सेकंड वन इज़ द डिटेक्शन एल्गोरिथम ऑन द बेसिस ऑफ द बैंकर्स एल्गोरिथम. नाउ व्हाट इज़ द वेट ग्राफ टेक्निक? Weight graph technique is simply like the resource allocation graph algorithm. So आप कह सकते हैं कि ये टेक्निक जो है ये मैच करती है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम से, इसलिए हमने इसको एक नाम प्रोवाइड किया जिसे हमने वेट फॉर ग्राफ कह दिया. Now one thing you need to note down is that this algorithm or this technique is suitable for single instance resources. जैसे हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम को डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज़ किया कि हमारे पास अगर हर रिसोर्स की सिंगल इंस्टेंस होगी तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं. तो सिमिलरली वेट फॉर ग्राफ भी इसी सूरत में पॉसिबल है दैट इफ़ वी हैव सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज. सो व्हाट ए सिस्टम डज इन दिस टेक्निक? ए सिस्टम मेंटेन्स ए वेट फॉर ग्राफ. नाउ व्हाट इज़ ए वेट फॉर ग्राफ? ए वेट फॉर ग्राफ has different nodes. We have processes and we have resources in resource allocation graph algorithm. But wait for graph algorithm में हमारे पास सिर्फ processes होंगे, हमारे पास resources नहीं होंगे, हम resources को represent नहीं करेंगे. Now अब ये जो processes हैं ये directed edge के साथ connected होंगे. So if we have a directed edge from the process Pi to Pj, we can say that the process I is waiting for process Pj, or in other words we can say that the process Pi is waiting for a resource held by the process Pj. क्योंकि एक प्रोसेस दूसरे के लिए वेट तभी करेगा जब उसे कोई ऐसा रिसोर्स चाहिए जो दूसरे प्रोसेस के पास है. अब ये टेक्निक क्या करेगी? Our system will periodically invokes this algorithm to find out if a deadlock has occurred or not. Now how system will check if a deadlock has occurred or not? As we are maintaining a graph and we have directed edges, so there is a possibility that our graph results in a cycle. So if there is a cycle in the graph, we can say that there exists a deadlock situation. And if there is no cycle in the graph, we can say that we have no deadlock under consideration. But as I discussed earlier, these techniques work for the system having single instance resources. Now let's suppose this is our example. The first thing here is the resource allocation graph algorithm, and the second one is wait for graph algorithm. Now let's suppose we have 5 processes P1, P2, P3, P4 and P5, and we have 5 resources: resource 1, resource 2, resource 3, resource 4 and resource 5. अब हम अगर इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करें तो इसका मतलब क्या है?
कि रिसोर्स 1 हमने एलोकेट किया हुआ प्रोसेस P2 को and P1 is requesting for resource 1. So it means that process P1 is requesting for resource R1 and the resource R1 is held by the process P2. So we can say that process P1 is waiting for process P2. Now this thing is depicted here. There is a directed edge between the process P1 and P2 which clearly defines that process P1 is waiting for process P2. इसी तरह the process P2 is requesting a resource R3 and the resource R3 is allocated to process P5. So we can say that process P2 is waiting for resource R5. So clearly you can see a directed edge from the process P2 and to P5 which indicates that process P2 is waiting for process P5. Similarly, process P2 has requested for resource R4 and the R4 resource is allocated to process P3. So you can say that process P2 is waiting for process P3. So this is shown with the help of this arrow. There is a directed arrow from process P2 and to P3. Similarly, process P2 has requested a resource R5 which is assigned to process P4. So you can say that process P2 is waiting for process P4 also. So here is a directed edge that shows that process P2 is waiting for process P4. अब हम देखेंगे प्रोसेस P3 ने एक रिसोर्स R5 के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन ये R5 रिसोर्स किसके पास है? प्रोसेस P4 के पास. तो हम कह सकते हैं कि प्रोसेस P3 भी प्रोसेस P4 का वेट कर रहा है. सो दिस एरो shows that process P3 is waiting for process P4. Similarly, process P4 ने रिसोर्स R2 के लिए रिक्वेस्ट की और R2 रिसोर्स जो है वो प्रोसेस P1 को एलोकेटेड है. सो इट मीन्स दैट process P4 is waiting for process P1. So there is a directed arrow or directed edge from process P4 and to process P1. Now this is our weight graph. इस तरह से हम weight graph create करेंगे. Now if you see, there is a cycle in this weight graph. Process P1 to P2, P2 to P3, P3 to P4 and P4 to P1. So this indicates that our system is in deadlock situation. Now we have another algorithm that is known as detection algorithm. Now this algorithm is based on several instances of resource type. जैसे हमने बैंकर algorithm डिस्कस किया था कि हमारे पास एक रिसोर्स की डिफरेंट इंस्टेंसेस हो सकती हैं. सो इसमें भी बेसिकली हमारे पास डिफरेंट इंस्टेंसेस एग्जिस्ट करेंगी. सो दिस एल्गोरिदम यूजेस सिमिलर डाटा स्ट्रक्चर एज प्रोवाइडेड बाय द बैंकर्स एल्गोरिदम. सिमिलरली हमारे पास अवेलेबल मैट्रिक्स है जो कि एक वेक्टर है, यानी एक वन डायमेंशनल मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे. Then we have an allocation matrix that is n cross m matrix that defines the number of resources of each type currently allocated to each process. n इसमें number of processes हैं और m हमारे पास number of resources and instances हैं. So ये भी basically एक two dimensional matrix है. And we have introduced another matrix that is request matrix. So it is also an n cross m matrix that indicates the current request of process. तो अगर आप यहाँ पर देखें तो नीड मैट्रिक्स नहीं है, नीड मैट्रिक्स की जगह हमारे पास रिक्वेस्ट मैट्रिक्स आ गया. So if we have an entity request ij is equal to k, then we can say that the process I is requesting k more instances of a resource j because processes are shown in the form of rows and resources instances are shown in the form of column. Now here is the algorithm. बिल्कुल बैंकर एल्गोरिथम की तरह हम एक वर्क वेक्टर बनाएंगे और एक फिनिश वेक्टर बनाएंगे. अब वर्क वेक्टर की लेंथ m होगी क्योंकि उसमें हम क्या स्टोर करेंगे? अवेलेबल रिसोर्सेज. और फिनिश वेक्टर की लेंथ n होगी क्योंकि उसमें हमारे पास n प्रोसेसेस होंगे. सो इसमें हमारे पास एक एडिशनल कंडीशन आ जाएगी कि अगर हमारे पास एलोकेशन ज़ीरो है, यानी हमने कोई भी रिसोर्स किसी प्रोसेस को एलोकेट नहीं किया, सो इट मीन्स दैट आवर प्रोसेसेस आर
not finalized, so finish value will be false. However, if we have allocated the resources, the finish value can be true. In the second step, we will find out a process that fulfills two conditions. अब ये दो कंडीशंस क्या हैं? एक तो वो प्रोसेस फिनिश ना हुआ हो, वो करंटली वेटिंग स्टेट में, उसको कोई रिसोर्सेज एलोकेट किए हों और कुछ रहते भी हों, एंड सेकेंडली वो प्रोसेस जो रिक्वेस्ट करे वो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज से कम हो, क्योंकि अगर वो अवेलेबल रिसोर्सेज से ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगा तो हम उसको सिंपली एलोकेट नहीं कर सकेंगे, और अगर उसकी रिक्वेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज से कम होगी सो वी कैन एलोकेट दीज रिसोर्सेज. सो इफ़ बोथ दीज कंडीशन होल्ड वी गो टू स्टेप 3 एंड व्हाट वी विल डू. हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वर्क रिसोर्सेज और अवेलेबल रिसोर्सेज में से रिक्वेस्ट रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे. वो प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को फिनिश करेगा और फिनिश करने के बाद अपनी टोटल एलोकेशन को रिलीज़ कर देगा. सो जब भी वो अपनी टोटल एलोकेशन रिलीज़ करेगा हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं वो इंक्रीज़ कर देंगे. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोसेस के पास एक रिसोर्स है जिसकी 3 इंस्टेंसेस हैं और उसने 2 इंस्टेंसेस रिक्वेस्ट की, तो हम वो 2 इंस्टेंसेस उसको प्रोवाइड कर देंगे, और जब वो अपनी वर्किंग कंप्लीट करेगा तो वो टोटल 5 इंस्टेंसेस जो हैं वो सिस्टम को रिलीज़ कर देगा. नाउ व्हेन ए प्रोसेस रिलीजेस दिस इंस्टेंसेस द प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड द एग्जीक्यूशन एंड वी कैन गो टू स्टेप 2 for finding out another process. So this is our main algorithm. So our system is in deadlock state if we have some processes in the unfinished state, or we have unfinished processes or waiting processes. So ये हमारे पास deadlock state आ जाएगी. या तो इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. वी हैव 5 प्रोसेसेस P0, P1, P2, P3, P4 एंड वी हैव 3 रिसोर्स टाइप्स A, B and C. Now A has total of 7 instances, B has total of 2 instances and C has total of 6 instances. Here we have the allocation matrix that shows the current state of allocation, and here we have the request matrix just like the need matrix. Now here we have the available matrix. अब हम इनका एक दफ़ा टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं. अगर हम रिसोर्स A की सारी इंस्टेंसेस को प्लस करें सो वी गेट ए टोटल ऑफ 7. सो इट मीन्स दैट ऑल द 7 इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स A हैज़ बीन कंज्यूम्ड. सिमिलरली इफ़ वी एड अप द इंस्टेंसेस एलोकेटेड फॉर द रिसोर्स B तो हमारे पास रिजल्ट 2 आता है, और B की टोटल 2 इंस्टेंस ही हैं. इसका मतलब B की हमारे पास कोई इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है. तो अगर हम C की इंस्टेंसेस को ऐड करें वी गेट 6. नाउ C हैज़ टोटल 6 इंस्टेंसेस, सो इट मीन्स दैट हमारे पास कोई भी रिसोर्स सिस्टम में अवेलेबल नहीं है. सिस्टम के सारे रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं. नाउ व्हाट विल हैपन. अब सबसे पहले आप एक प्रोसेस देखें P0. अब ये फिनिश स्टेट में भी नहीं है और इसको कोई और रिसोर्स रिक्वेस्ट भी नहीं है. सो इट मीन्स दैट इट कैन कंटिन्यू इट्स एग्जीक्यूशन and at the end it will release its resource to the available resources. So it means हमारे पास सबसे पहले सीक्वेंस में प्रोसेस P0 आ जाएगा. अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज में ये है, ये सिचुएशन है. एलोकेशन हमारे पास 0 हो गई, रिक्वेस्ट भी 0 है, अवेलेबल रिसोर्सेज 1 है. सो अब बेसिकली क्या होगा. नाउ वी गो टू प्रोसेस P1. नाउ प्रोसेस P1 हैज़ 200 allocation and it requests for these resources. So ये रिक्वेस्ट जो है ये अवेलेबल रिसोर्सेज से लेस है, सो हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे. वी विल गो टू प्रोसेस P2. प्रोसेस P2 की एलोकेशन क्या है 303 और रिक्वेस्ट क्या है 000. सो इट मीन्स दैट प्रोसेस P2 कैन एग्जीक्यूट एंड रिलीज द रिसोर्सेज आफ्टर एग्जीक्यूशन. सो जब ये रिसोर्सेज को रिलीज़ करेगा हमारे पास सिस्टम में 3A की इंस्टेंसेस आ जाएंगी और 3 ही C की इंस्टेंसेस आ जाएंगी, और यहाँ पर एलोकेशन हमारे पास 0 हो जाएगी. सो नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस में क्या आ जाएगा P2 प्रोसेस. नाउ वी हैव P3 प्रोसेस. P3 process has these number of allocations and this is the request. So for entertaining this request we will first compare it with the available matrix. तो अवेलेबल में हमारे पास 313 रिसोर्सेज हैं,
रिक्वेस्ट हमारे पास 100 किया। सो जब हम 1 इंस्टेंस इसको एलोकेट करेंगे तो एलोकेशन हमारे पास हो जाएगी 311, रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी 000 और अवेलेबल हमारे पास आ जाएंगे 213 क्योंकि हमने एक इंस्टेंस उसको एलोकेट कर दी। सो जैसे ही प्रोसेस P3 कंप्लीट होगा ये अपने 311 रिसोर्सेज रिलीज़ कर देगा। सो वी विल हैव ए टोटल ऑफ 5, 2 and 4 रिसोर्सेज अवेलेबल और इसकी एलोकेशन क्या हो जाएगी 0। सो नेक्स्ट वी हैव प्रोसेस P3। Similarly we have process P4 that requires 2 instances of available resource C. So we can allocate these instances immediately. So यहाँ पर allocation हमारे पास 4 आ जाएगी, request हमारे पास 0 रह जाएगी और हमारे पास availability 2 रह जाएगी। तो यहाँ पर आप P4 को भी ऐड कर सकते हैं। And after that we have only, or after that when P4 finishes the execution it will release all the 4 instances. So 4 instances will be added to this. This will make 6 instances. Now the process P1 needs 202 instances क्योंकि P नॉट भी फिनिश्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम ये 202 इंस्टेंसेस यहाँ से लेंगे और इसको एलोकेट कर देंगे। सो वी विल गेट 402 और 202 को हम यहाँ से माइनस कर देंगे 3 and 4 और रिक्वेस्ट इसकी क्या रह जाएगी 0, 0 and 0। सो जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद ये अपनी 402 एलोकेशन रिलीज़ कर देगा और जो एलोकेशन रिलीज़ होगी उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 7, 2 and 6। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट ऑल द रिसोर्सेज आर नाउ इंटैक्ट। हमारे सारे प्रोसेसेस भी एग्जीक्यूट हो गए और हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज भी टोटल रिसोर्सेज के इक्वल आ गए। सो इट मीन्स दैट अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो करें या P4 P1 को ऐड करके फॉलो करें, आवर ऑल प्रोसेसेस कैन एग्जीक्यूट कम्प्लीटली विदाउट फेसिंग एनी डेडलॉक सिचुएशन। नाउ हियर इज अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हियर P2 रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल रिसोर्स, तो तब क्या होगा, P नॉट तो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। अगर हम इस सिचुएशन को देखें P नॉट विल कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन बिकॉज इट डजंट नीड एनी रिसोर्स। लेकिन P नॉट जो रिसोर्सेज रिलीज़ करेगा वो रिसोर्सेज बेसिकली एनफ नहीं होंगे। मैं इसको रीसेट कर लूँ, वो रिसोर्सेज जो हैं एनफ नहीं होंगे कि हम उससे P2 की कंडीशंस को फुलफ़िल कर सकें। सो इट मीन्स दैट आवर सिस्टम विल रिजल्ट इन ए deadlock state and there will be deadlock among processes P1, P2, P3 and P4. So you people try to solve this example by yourself. मैं स्लाइड्स में आपको कंप्लीट डाटा भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस एग्जांपल को इस रिक्वेस्ट के साथ सॉल्व करके देखेंगे कि डेडलॉक सिचुएशन अराइज होती है या नहीं। नाउ व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम? So detection algorithm is executed often to find out if a deadlock has occurred or not. So पहली बात तो ये है कि deadlock detection algorithm ये चेक करेगा कि एक deadlock occur हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद जैसे हमें यहाँ पर पता चला कि 4 प्रोसेसेस के दरमियान deadlock है, तो deadlock detection algorithm हमें ये भी बता देगा कि हमें कितने प्रोसेसेस को डील करना पड़ेगा deadlock सिचुएशन से रिकवर करने के लिए। Now next step is the deadlock recovery process. There are 2 solutions. The first solution is process termination and the second solution is resource preemption. Now what is process termination? Process termination का मतलब है कि हम बाय फोर्स किसी एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को टर्मिनेट कर दें, एंड कर दें या प्रोसेसेस को किल कर दें। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम टास्क मैनेजर में जाके किसी प्रोसेस पे एंड प्रोसेस क्लिक करते हैं। सो दिस इज़ प्रोसेस टर्मिनेशन। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वी कैन अबर्ट ऑल डेडलॉक्ड प्रोसेसेस, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास 4 प्रोसेसेस डेडलॉक स्टेट में थे तो हम चारों के चारों अबॉर्ट कर सकते हैं। वी कैन अबॉर्ट 1 प्रोसेस एट ए टाइम अंटिल द डेडलॉक साइकिल इज़ एलिमिनेटेड, यानी हम टर्न बाय टर्न P1 को एलिमिनेट करके देखें
और फिर डिटेक्ट करें कि डेडलॉक अकर किया या नहीं। फिर उसके बाद हम P2 को एलिमिनेट करें, फिर चेक करें कि डेडलॉक अभी भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। हम टर्न बाय टर्न प्रोसेसेस को टर्मिनेट करते जाएं जब तक कि डेडलॉक ख़त्म ना हो जाए। सो व्हाट इज़ द ऑर्डर वी यूज़ टू टर्मिनेट द प्रोसेसेस? वी कैन टर्मिनेट ए लो प्रायोरिटी प्रोसेस, वी कैन यूज़ द पैरामीटर ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस, यानी अभी जो प्रोसेस अभी स्टिल अर्ली स्टेजेस में हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक प्रोसेस के पास कितने रिसोर्सेज हैं उसकी बेस पे हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक प्रोसेस को फ्यूचर में कितने रिसोर्सेज चाहिए उसकी बेस पे उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक क्रिएट करेगा। उसके बाद हमें जिस सिचुएशन में कम से कम प्रोसेसेस को टर्मिनेट करना पड़े उसकी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किन प्रोसेस को टर्मिनेट करें। एंड एट लास्ट we can decide if we are going to terminate an interactive process or a batch process. So next alternative is resource preemption. Resource preemption means कि बजाय इसके कि हम किसी प्रोसेस को किल करें, हम उसके या किसी प्रोसेस को हम टर्मिनेट करें, हम उस प्रोसेस से उसके रिसोर्सेज वापस ले लेंगे और उन रिसोर्सेज और उस प्रोसेस को हम वेटिंग स्टेट में भेज देंगे और फिर उन रिसोर्सेज को हम डिफरेंट प्रोसेसेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि वो प्रोसेसेस उनको यूज़ कर सकें। सो फॉर दिस वी हैव टू सेलेक्ट ए विक्टिम। नाउ व्हाट इज़ ए विक्टिम? इट इज़ ए प्रोसेस दैट वी विल सेलेक्ट टू डी एलोकेट द रिसोर्सेज, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम रिसोर्सेज को डी एलोकेट करेंगे उसको हम विक्टिम प्रोसेस कहेंगे। उसके बाद हमें रोल बैक करना पड़ेगा, यानी जब हम एक प्रोसेस से सारे रिसोर्सेज वापस ले लेंगे तो हम उसको वेटिंग स्टेट में स्टोर करेंगे और उसके बाद जब डेडलॉक रिकवर हो जाएगा यानी हम सेफ स्टेट में आ जाएंगे, हम उस प्रोसेस को दोबारा से रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सके। अब इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है जिसे हम स्टारवेशन प्रॉब्लम कहते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि हम एक या एक से ज़्यादा दफ़ा एक ही प्रोसेस को सिलेक्ट कर लें रिसोर्स प्रीम्पशन के लिए, यानी हमने पहले भी प्रोसेस ए को सिलेक्ट कर लिया, फिर सेकंड टाइम फिर हमने प्रोसेस बी को सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने प्रोसेस सी को सिलेक्ट कर लिया। सो इस सिचुएशन में क्या होगा, हम बार बार एक प्रोसेस को सिलेक्ट भी करेंगे, हम उस प्रोसेस से रिसोर्स प्रीम्पशन भी करेंगे, उस प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में भी लेके जाएंगे और उसके बाद उसको रोल बैक भी करेंगे। तो ये रिपीटेड साइकिल चलता रहेगा जिसकी वजह से वो प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू नहीं कर सकेगा और बाकी प्रोसेसेस उसकी जगह एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते रहेंगे। नाउ दिस इज़ बेसिकली starvation situation. So this was our article about the deadlock detection and the recovery process.